Hello everyone, you're watching Saheb Academy. If you like our videos, then please subscribe to our channel and also hit the bell icon for the regular updates, and also follow us on Instagram, Saheb Academy. Now let's go to the video. Hi everyone, welcome back to Saheb Academy. Today we are going to start this new chapter of Group 2 Advanced Accounts, ESOP, Employee Stock Option Plan, or you can also say Employee Stock Option Scheme, right? So this ESOP chapter is a very simple chapter and it's one of the easiest chapter from advanced accounts, right? So let's start this video. Let's understand the concept and the whole idea of this chapter properly in this video. Yeah, and we are also going to see the journal entries, everything, all the calculation and everything. And then in the next video, we are going to solve problems, right, from the study material, right? So let's start. Now first let's understand what does ESOP actually means, right? You already know the full form, Employee Stock Option Plan, but what does it mean actually? Let's understand that. See here, ESOP is a share-based payment that is given to the employees of the company, okay, as a reward, or you can say it's an incentive scheme really. Yes, it is being offered to the employees of the company. But now you have to understand why it is being given to the employees. What is the reason or the objective and motive of the company behind giving ESOP to the employees? Why? That's because employees are very lalchi. They are very greedy. So being greedy, these employees, whenever they get a higher offer by any other company, whenever they get that, the employees will leave the existing company and they will join the new company. So this is a big problem for the companies. For example, let's say an employee of Tata company is there, and let's say he has 1 million package. He has been working there for a year. He has got training from Tata company for 4 to 5 months to become job ready and to understand the industry as a whole and everything. Yes, and then what happens? Reliance company comes and offers him 1.5 million package, and then that employee doesn't even think twice about leaving the Tata company. He directly leaves the Tata company and joins the Reliance company, right? So he doesn't have any loyalty towards the Tata company, nothing. He doesn't think anything about that. He's very greedy, he's very lalchi. He just sees his own motive, his own self. He's very selfish. He directly joins the Reliance company. Yes. So if you see from the point of view of the Tata company, what is happening? Tata company is suffering because Tata company has incurred so much cost on this guy, right? This employee, because training has been given. So that's a big cost. And the labor turnover will also increase if the employees keep on hopping from the companies, joining and leaving, and the labor cost will also increase. So this is a big problem. So to solve this problem to an extent, the companies come with this scheme, Employee Stock Option Plan. With this, what they try to do is, the motive of the company is they are offering the ESOP because they can retain the employees in the company itself. वो ESOP देते हैं अपने employees को कि हमारा employee हमारी company छोड़ के न जाए. Okay, he will be our employee for 3 to 4, 5 years or so. ये उनका objective होता है. ESOP देने का objective क्या है? Retention of employees. Employees को हमारी company में lock करके रखो. वो कैसे होगा? You have to understand the ESOP concept now as a whole. Let's understand that. See here, we already know that ESOP is a way of doing share-based payment to the employees of the company as a reward or an incentive scheme, right? Till there we have discussed. But now, what is ESOP in itself? How does this process will work? You have to understand that. See, ESOP physically is an instrument. It is a piece of paper that is offered to the employees. So now with that instrument or that piece of paper, what employees can do? Employees, with that instrument, the employees will have an option. When employees are getting ESOP, employees are getting an option to purchase the shares of the company at a very low price, at a very concessional rate, or maybe even free. But 90% of the time it will be concessional rate, okay? If the market price is, let's say 100, for example, then the concessional rate would be 30, 20 rupees, like that. So ESOP is what? ESOP is an instrument which gives the option to the employees to purchase the shares of the company at a concessional rate. Okay, now they cannot directly purchase. No, in the future they can purchase if they satisfy the conditions. Okay, if they satisfy the condition, that's the main thing about ESOP. If you're getting the ESOP on day one, if the company offers you ESOP on the day one, then ESOP is of no use to you. As an employee, ESOP is of no use to you unless and until you satisfy the conditions. Only after satisfying the condition, if the conditions are fulfilled, then only the employee will be eligible for ESOP. Eligible for ESOP means, he can exercise his option. By exercising his option, I mean, वो shares
खरीद पाएगा, he will be able to buy the shares, okay, buy ESOP. And if he doesn't buy within the period the company gives, then those shares, I mean those ESOPs will be expired, it will be lapsed. ओके तो क्या होता है, ESOP एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी वजह से इंप्लॉयज़ को एक राइट मिलता है, नॉट एन ऑब्लिगेशन, ए राइट, उनकी चॉइस होती है, ऑप्शन मिलता है टू परचेज द शेयर्स एट अ वेरी लो प्राइसेस. लेकिन वो ऐसे ही परचेज नहीं कर सकता ऑन द डे 1, द डे 20, समथिंग लाइक दैट. नो, एक कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं. ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग सच कंडीशंस, इफ दे आर फुलफिल्ड, देन ओनली द एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर ESOP. उसके बाद ही वो एक्सरसाइज कर सकता है, अपना हक एक्सरसाइज कर सकता है. अपना राइट एक्सरसाइज करने का मतलब ही विल बी एबल टू बाय द शेयर्स एट अ कंसेशनल प्राइसेस, एट अ वेरी लो प्राइसेस. ओके, तो अब ये कंडीशन क्या होता है, कंडीशन समझने के बाद आपको समझ आएगा कि क्यों एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ने के पहले 2 बार सोचेंगे. राइट, सो सी हियर, इधर तक समझ आया ना. अगर कंडीशन फुलफिल होते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी लो प्राइसेस. इफ दे डोंट परचेज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, देन द ESOP विल बी एक्सपायर्ड. यस, let's go to the conditions now. See, conditions are very simple. Conditions are, it's called vesting condition. Vesting मतलब eligibility conditions. आपको ESOP के लिए eligible होना है, आपको purchase करने के लिए eligible होना है, तो conditions fulfill करना पड़ेगा. So it's called eligibility conditions or vesting conditions. Technical term है vesting condition, right? So there are 2 types. See here, service condition and performance condition. परफॉर्मेंस कंडीशन मतलब क्या, कुछ इनकम रहेगी, वो अचीव करना पड़ेगा, टारगेट, यू विल बी गिवन टारगेट्स टू अचीव. ओके, विल गेट टू दैट लेटर while solving the problem, don't worry. Now we'll only focus on the service condition. Okay, so service condition is what, employment condition. Be our employee for a certain period, 2 years, 3 years, 4.5 years, like that. हमारा एम्प्लॉय बन के रहना पड़ेगा. अगर 2 years हमारा एम्प्लॉय बन के रहते हो, नहीं छोड़ोगे एम्प्लॉयमेंट या हमारी कंपनी नहीं छोड़ोगे, उसका मतलब जो भी पीरियड होगा, 3 years, 4.5 years, राइट, अगर नहीं छोड़ोगे मतलब कंडीशन फुलफिल होगी. एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, 3 साल बोले तो 3 साल तुमने नहीं छोड़ा एम्प्लॉयमेंट, कंपनी को नहीं छोड़ा, देन ओनली ESOP विल बिकम एलिजिबल. यू विल बी एलिजिबल फॉर ESOP. तुम एक्सरसाइज कर पाओगे, परचेज कर पाओगे, ऐसा. सो यू हैव टू सेटिस्फाई द कंडीशन. इफ यू सेटिस्फाई द कंडीशन, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल. इसका मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो ESOP की कोई वैल्यू नहीं है. ESOP गया तेल लेने. इफ़ यू लीव द कंपनी इन बिटवीन द वेस्टिंग पीरियड, या 3 साल बोले तुमने 2 साल के बाद छोड़ दिया कंपनी को, गया ESOP गया तेल लेने, राइट. सो यू हैव टू सेटिस्फाई द कंडीशन. इफ यू सेटिस्फाई द कंडीशन, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ESOP. समझ में आया? इजी. एक इंस्ट्रूमेंट है जो एम्प्लॉयज़ को राइट देता है, नॉट एन ऑब्लिगेशन. ज़रूरी नहीं है, एम्प्लॉयज़ का चॉइस है टू एक्सरसाइज देयर राइट. ओके, इतना समझ में आया? ओके, now we have to understand some terms here. See here, the ESOP timeline also. See what will happen. Let's say on 1/4/2020, ESOPs are offered to the employees of the company, right? So this date is called as grant date. जब ESOP offered होते हैं, grant date is the date at which ESOP is offered to the employees of the company. Okay, grant date. उसके बाद क्या होगा? Let's say the ESOP have 3 years condition. 3 years आपको employee बन के रहना पड़ेगा. Be an employee for 3 years. So that period, 1 year, 2 year, 3 year, yeah, 31st March 2021, 31st March 2022, 31st March 2023. So this period of 3 years will be called as vesting period. मतलब eligibility का period है, right? This is called vesting period, eligibility period. All right. So you have to be employee for 3 years. So whatever terms and conditions in that ESOP are there, whether it is service condition or performance condition, according to that there will be vesting period. Yeah. So that's called vesting period, yeah. And vesting means what? Eligibility. Vesting conditions means conditions which you have to fulfill to be eligible for ESOP. जो भी condition रहेंगे, इधर एक condition क्या है? Be an employee for 3 years, right? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद after the vesting period, the options, the ESOPs will become eligible. ESOPs will become eligible का मतलब they will be vested. उसको बोलते हैं options vested हो गए, vested, not wasted. Options wasted हो गए, not WASTED, okay, not wasted, no, कचरा, no, not कचरा, wasted, VESTED, right? मतलब eligible हो गए, options eligible हो गए, options have become eligible. So if options have become eligible, then you can exercise your right, you can exercise the option, either buy the ESOP or don't buy, and the time will pass, and after a certain period which the company will decide, okay, prescribed period will be there, then the options will be lapsed, expire हो जाएंगे. expire होने के बाद फिर आप purchase नहीं कर सकते. okay, so ये timeline होता है. grant date at which ESOPs are offered, then the vesting period, eligibility period, जो भी रहेगा आपको satisfy करना पड़ेगा. only if the conditions are satisfied, then only options will become vest, eligible होते हैं, vest,
वेस्टिंग का मतलब एलिजिबिलिटी, सो ऑप्शंस वेस्ट होते हैं, वेस्टेड, VESTED, राइट। सो ऑप्शन जब वेस्टेड होते हैं तभी वो ऑप्शंस को आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब शेयर्स परचेज कर सकते हो एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब जो लो प्राइस रहेगा विच विल बी प्री डिटरमाइंड, पहले ही डिसाइड किया हुआ होगा, सिंपल। अब जैसे मैंने बोला मोस्टली ESOP विल नॉट बी फ्री, या 90% of the time it will be concessional rate only. You will have to pay something to buy the shares with ESOPs. Okay, you will not be given free. You can be given free, but that's very rarely happens. Okay, so see here, mostly ESOP will not be free. Employees have to pay cash. अब तुम बोलोगे कैश तो पे करना है तो क्यों ना मार्केट से ले लूँ। मार्केट से क्यों लोगे, तुमको क्या मिल रहा है इधर, तुमको ESOP मतलब क्या, एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है ना। इधर क्या होता है, मार्केट प्राइस से बहुत लो प्राइस मिलता है, जैसे मैंने बोला एट अ कंसेशनल रेट, सो दैट्स वाई अ प्राइस विल बी ऑफर्ड टू यू कॉल्ड एज एक्सरसाइज प्राइस। कंसेशनल प्राइस जो ऑफर्ड होगा बहुत कम प्राइस, उसको बोलते हैं टेक्निकली इन दिस चैप्टर एक्सरसाइज प्राइस। ओके, एक्सरसाइज प्राइस मतलब कंसेशनल प्राइस एट विच ESOP इज ऑफर्ड। ओके, अगर मार्केट प्राइस शेयर मार्केट में 150 चल रहा है, तुमको बहुत कम दे रहे हैं, 100 रुपीज़ पे दे रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, अ प्राइस विच इज़ बीइंग ऑफर्ड टू यू। तो क्या होगा, 3 साल होने के बाद जब तुम इधर शेयर्स परचेज करोगे, एंड इट इज़ अ राइट, ओके, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, चाहिए तो इधर परचेज करो वरना छोड़ो, लैप्स हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ योर ऑप्शन, इट इज़ योर राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन, ज़रूरी नहीं है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा था इधर, मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स प्रॉपरली। ओके, सो सी हियर, एक्सरसाइज प्राइस मतलब द प्राइस विच इज़ ऑफर्ड, ओके, कंसेशनल प्राइस एट विच ESOP इज ऑफर्ड। समझ में आया। अभी देखो क्या हो रहा है इधर, मार्केट प्राइस 150 है, एक्सरसाइज प्राइस 100 है, राइट। सो नाउ द कंपनी इज ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 50, इजंट इट, कंपनी इज ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 50। अगर 150 ऑफर करती कंपनी, तुम क्यों लेते, तुम नहीं लेते, तुम मार्केट से भी ले सकते हो ना। वाई वुड यू बॉदर टू परचेज द शेयर फ्रॉम द कंपनी, यू विल नॉट, राइट। So here they are offering you discount, they will offer discount, huge discount, yeah, 50 rupees discount. So this discount is only given to employees, right? And that discount technically in this chapter is called as value of option. जो option मिल रहा है उसका value, right? Value है ना, ये option की value कैसे मालूम हो रही है, क्योंकि इतना discount मिल रहा है, so that's value of option. Okay, और ये value of option क्या होता है, discount हमेशा क्या होता है, expense होता है। डिस्काउंट इज व्हाट, इट्स एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, लॉस हो रहा है ना कंपनी को, कंपनी बेच सकती है शेयर्स इन द मार्केट एंड गेट 150, बट दे आर सेलिंग इट टू यू एट 100, तो लॉस हो रहा है कंपनी को 50, तो ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमेशा कहाँ जाएगा, एज एन एक्सपेंस, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल लॉजिक, राइट। इट्स एन एक्सपेंस, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, कीप दैट इन माइंड। ओके, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है ना, ये फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स है, देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। द फर्स्ट मेथड इज, यू नो, वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज द इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। यू नो, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड मतलब क्या, इधर तुम क्या करते हो, मार्केट प्राइस पर शेयर 150 माइनस द एक्सरसाइज प्राइस, द प्राइस विच इज बीइंग ऑफर्ड टू यू, टू द एम्प्लॉइज, सो 150 माइनस 100, 150 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 50, दैट इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। 150 मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस 100 है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 50 डिस्काउंट, सो दिस इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब क्या, डिस्काउंट। टेक्निकली इस चैप्टर में हम डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलते हैं, क्लियर। सो दिस इज द first method, that is called intrinsic value method. But sometime examiner, what he will do, he will or she will give you, you know, directly the value of option, that is called fair value of option, directly. Okay, this fair value of option is calculated with, you know, so many factors and the whole vesting period taken into consideration. Okay, you will learn this in strategic financial management, okay, in CA final, right? Here in advanced account, it will be directly given to you. Okay, so fair value of option will be given to you directly by the examiner in the question itself. Okay, whatever it may be, it doesn't always have to be 50 and all. No, they can give you anything. So 60, let's say 60. So if fair value of option is directly given to you, directly you have to take it. Okay, this is first priority, this method is first priority and this method is second priority. Okay, if the fair value of option is not given, then you have to calculate. If it is given, directly take it, why bother? Yeah, don't go on calculating and all. But then if you have to calculate value of share, then how will you calculate value of share? You will take X price, exercise price plus value of option, you will get value of share. Okay, exercise price plus value of option, you will get value of share. This formula only, see, just revert this formula, you will get value of share. See here, the value of share over here is 150. Yes, you subtracted X price, you got value of option. Here it is inverted, right? So first priority, this is second priority. Okay, but the first method is this one, intrinsic value method.
बट इफ इट इज डायरेक्टली गिवन बाय द एग्जामिनर, डायरेक्टली टेक दिस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, तो इधर हमने क्या देखा, ग्रांट डेट, डेट एट विच ESOP इज ऑफर्ड, वेस्टिंग का मतलब एलिजिबिलिटी, वेस्टिंग कंडीशन मीन्स द कंडीशन विच यू हैव टू फुलफिल टू बी एलिजिबल फॉर ESOP, एक्सरसाइज प्राइस मीन्स द प्राइस विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी, जो आपको पे करना है, एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय आपको पे करना है इन द एक्सरसाइज पीरियड टू परचेज द शेयर्स, दैट इज व्हाट एक्सरसाइज प्राइस. बट देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन, डिस्काउंट, डिस्काउंट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन. क्लियर, समझ में आया. ESOP टाइमलाइन क्लियर. ओके, और देखो हाँ, हमेशा एट द ग्रैंड डेट ओनली द मार्केट प्राइस विल बी टेकन. ओके, नाउ इन द क्वेश्चन व्हाट कैन हैपन इज, यू नो, एट एवरी पीरियड दे विल गिव यू मार्केट प्राइस हियर हियर हियर, जस्ट इग्नोर दैट. ओके, द मार्केट प्राइस विच यू हैव टू कंसिडर इज ओनली एट द ग्रैंड डेट मार्केट प्राइस. जो मार्केट प्राइस पहले दी होगी वही मार्केट प्राइस लेना है सोल्यूशन में सॉल्व करते वक्त. Okay, so market price will be constant and value of option will always be constant, it will not change. Okay, लोग मिस्टेक करते हैं, अगर इधर अलग मार्केट प्राइस दिया तो वो कंसिडर करते हैं. डोंट कंसिडर दैट. द मार्केट प्राइस विच इज गिवन एट द ग्रैंड डेट, दैट ओनली यू हैव टू कंसिडर. क्लियर. सो दिस इज व्हाट. नाउ लेट्स सी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दैट यू हैव टू डू इन ESOP. ओके, now here we have the accounting treatment regarding ESOP. So now we are going to see as an accountant what we have to do regarding this ESOP transaction, what accounting treatment, and how are we going to record this in the company's books, right? So it's very simple. The entire game, you know, the entire game, पूरा खेल है ना इस पे है employee compensation expense के calculation और allocation to profit and loss में है, right? तो आप बोलोगे सर ये employee compensation expense क्या है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं. देखो, employee compensation expense वो खर्चा है जो हम ESOP की वजह से कर रहे हैं. बोलो आप, कौन सा खर्चा हम ESOP की वजह से करते हैं एज एन कंपनी, विच इज़ द एक्सपेंस दैट वी इनकर बिकॉज ऑफ ESOP. द ओनली एक्सपेंस वी इनकर इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन. जब हम ESOP ऑफर करते हैं तो ESOP होता है एक्सरसाइज प्राइस पे, है क्या नहीं. वी ऑफर द ESOP एट अ reduced कंसेशनल प्राइस, सो दैट मीन्स वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट. सो ESOP का खर्चा मतलब डिस्काउंट, ESOP का खर्चा मतलब डिस्काउंट, एंड दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, isn't it? Yes, and that expense has to be booked to profit and loss account, isn't it? Always we take all the expenses to profit and loss account. We do that, obviously. तो अब ये पूरा खर्चा बहुत बड़ा होगा, सिर्फ 50 रुपये नहीं होगा, जितने ऑप्शंस हैं मल्टीप्लाई बाय 50, राइट? तो ये बहुत बड़ा खर्चा है, ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है. तो कैसे लेके जाओगे? हमारा गाइडेंस नोट क्या बोलता है, यू कांट टेक इट इंटायरली इनटू 1 ईयर. व्हाई? बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप ESOP ऑफर कर रहे हो बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑफ देयर इंटायर सर्विस पीरियड, है क्या नहीं. यू आर ऑफरिंग द ESOP and you are putting the restrictions in there that they have to be employed for 3 years. So you are getting the benefit, you are getting the service from your employees for entire 3 years. So now this expense is related to that only. This expense of value of option, this expense of discount is related to the ESOP only. Yeah, you are getting the benefit of ESOP for the entire 3 years. So you have to recognize this expense and allocate it into the profit and loss over the number of years. 1, 2, 3, 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके डालना पड़ेगा ये एक्सपेंस वैल्यू ऑफ ऑप्शन का. और ये एक्सपेंस को हम जनरल एंट्री में क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, राइट. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस. Calculation of value of option is not a big deal. Yeah, that will only be what, just 50 rupees, 60 rupees, 30 rupees like that. But the gross amount calculation, बड़ा calculation जो करना पड़ेगा ना, कितना कितना डाल रहे हैं, ये साल में कितना डालूँ, ये साल में कितना डालूँ, ये साल में कितना डालूँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, right? Actually it's not complex, but students feel it's very complex, right? And it's kind of a tricky but not that complex. Okay, there's a formula. Once you understand the formula, then it will be very easy. Okay, तो समझा तुम क्या करना है. ये जो एक्सपेंस है इसको 3 साल जितना भी वेस्टिंग पीरियड रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है, राइट. समझ में आया? तो वही हमको करना है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, बट कितना डालना है हर साल, वही सबसे बड़ा गेम है. सारा खेल उसी पे है, कितना डालना है. अभी सोचो 1 लाख हो गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस इन टोटल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. तो कैसे डालोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे? नो, यू कांट डू दैट. या इट डिपेंड्स ऑन मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स. ओके, तो हम देखेंगे वो इन अ सेकेंड. ओके, तो जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं. पहले देखो जर्नल एंट्रीज कैसी होंगी. सी हियर द फर्स्ट जर्नल एंट्री यू हैव टू पास, या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है. एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर ना तुम क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज पास करोगे. ओके, नॉट इन द बिगिनिंग. ग्रैंड डेट पे कोई जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं पास होता. ओके, कुछ पास नहीं होता. एट द एंड ऑफ एवरी ईयर व्हाट यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस. या
एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट मतलब वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये डिस्काउंट का खर्चा है ना, ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ओके, इधर 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 रिकग्नाइज करना पड़ेगा, और उसका कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट उसका कैलकुलेशन होता है, वही जो मैं बोल रहा था अभी, फॉर्मूला है, राइट। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, वी विल सी दैट इन अ सेकंड, राइट। सो एंड देन व्हाट यू गोना डू, आर यू गोना पे समथिंग टू देम, आर यू गोना गिव देम एनीथिंग, नो। अगर ये साल में अभी वेस्टिंग पीरियड कितने का है, 3 साल का है ना वेस्टिंग पीरियड, तो शेयर्स यहाँ दिए जाएंगे, है कि नहीं। जब ऑप्शंस वेस्ट हो जाएंगे, जब ऑप्शंस एलिजिबल हो जाएंगे, तभी एम्प्लॉइज विल बी एबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, राइट, दे विल बी एबल टू परचेज द शेयर्स। सो हियर वी आर गोइंग टू गिव देम द शेयर्स, नॉट हियर। इधर सिर्फ एक्सपेंस रिकग्नाइज कर रहे हो, कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, दे रहे क्या, कुछ नहीं देंगे, इधर भी कुछ नहीं देंगे, इधर भी कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो अगर कुछ भी नहीं दे रहे हो, एक्सपेंस रिकग्नाइज कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी रिकग्नाइज करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग। सर हमको नहीं समझा सर, ये आप क्या कर रहे हो इधर, ये लाइबिलिटी क्यों रिकग्नाइज हो रही है। देखो सैलरी का एग्जाम्पल लो, सैलरी जब पे करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट व्हेन यू पे द सैलरी, बट इफ यू डोंट पे द सैलरी, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, देन व्हाट इज द एंट्री, salary account debit, you have taken the benefit from your employees, you have to recognize the expense, yeah, but then have you paid anything, have you paid cash, no, as I said salary is outstanding, नहीं पे किया है, तो to salary outstanding you are going to recognize the liability. Similarly जैसे यहाँ पे तुमने किया, एक्सपेंस को डेबिट किया और एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग कहा, एक लाइबिलिटी क्रिएट की, क्योंकि कुछ पेमेंट नहीं किया ना, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो और कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है, राइट। तो यू आर गोइंग टू टेक दिस अकाउंट टू ESOP आउटस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है, हिट हो रहा है कैसा लॉजिक, राइट। ये लॉजिक यहाँ पे लगाओ, समझ में आएगा। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस को रिकग्नाइज किया, कुछ पे नहीं किया, हम पे करने वाले इन फ्यूचर में पे करने वाले हैं ना, वो भी कैश नहीं, वी आर गोइंग टू पे, वी आर गोइंग टू गिव शेयर्स, राइट। शेयर्स देंगे, यहाँ पे कैश नहीं देते, शेयर्स देते हैं, कैश देते हैं लेकिन वो अलग है, वो तुम्हारे सिलेबस में उसके क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादातर, ओके, दैट्स डिफरेंट, दैट्स कॉल्ड कैश सेटल्ड, ओके, कैश सेटल्ड, दैट्स डिफरेंट ESOP, यप। तो शेयर्स देना होता है मोस्टली, राइट। तो शेयर्स कब दोगे, फ्यूचर में दोगे, आप तो नहीं दोगे ना, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी शेयर्स, सो यू हैव टू रिकग्नाइज अ लायबिलिटी टू ESOP आउटस्टैंडिंग, ओके। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे इन ए सेकंड, वेट ए मिनट। और क्या करना है, सिंस ये नॉमिनल अकाउंट है, जैसे सैलरी भी एक नॉमिनल अकाउंट है, राइट, पेमेंट करो या ना करो, तुमको क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू ट्रांसफर द बैलेंस फ्रॉम द नॉमिनल अकाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स के जितने भी अकाउंट्स रहते हैं हम क्लोज करते हैं और उनका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है क्या नहीं। इधर सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, उसको क्रेडिट करके कैंसिल ऑफ किया इक्वल अमाउंट, और यू ट्रांसफर दैट अमाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा करते हैं। तो इधर भी वैसा ही करोगे, राइट। और ये दोनों एंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहे हैं, मत सोचो कि ये फर्स्ट डे पे हो रहा है फिर ये लास्ट डे पे हो रहा है, नहीं, सब लास्ट डे पे हो रहा है, ओके। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंट्री, और ये जो अमाउंट होगा सिंपल सेम क्रेडिट करना है। ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, राइट, इट विल बी कैंसिल्ड। द ओनली अकाउंट दैट विल बी रिमेनिंग या इज द ESOP आउटस्टैंडिंग, दिस लायबिलिटी, एंड दिस लायबिलिटी विल बी टेकन टू द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर अंडर द हेड व्हाट, रिजर्व्स एंड सरप्लस एज ESOP आउटस्टैंडिंग, ओके, वहाँ जाएगा वो, राइट, बिकॉज ये लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है तो वहाँ पे जाएगा। एक्चुअली ये लाइबिलिटी नहीं, एक्चुअली ये इक्विटी में आता है, ओके, बट इन द जनरल एंट्रीज टू अंडरस्टैंड यू हैव टू कंसिडर इट एज ए लाइबिलिटी, फाइन, ओके, बिकॉज ईजी होता है, अगर इधर तुम सोचते हो ये लाइबिलिटी है तो सब एंट्रीज करने में ईजी होता है, राइट। सो टू ESOP आउटस्टैंडिंग, समझ में आया। सो आप क्या करना है, मैंने तुमको बोला वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, तुमको बेनिफिट एम्प्लॉय से मिल रही है सर्विस 3 साल की, तो जो ये एक्सपेंस हो रहा है ESOP की वजह से, इसको भी 3 साल ये करना पड़ रहा है, एलोकेट करना पड़ रहा है, राइट। तो अब हर साल के एंड में तुम क्या करोगे, ये 2 एंट्री पास करोगे, राइट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ओके, और सेम एंट्री, ये और ये एंट्री सेम पास करोगे, लेकिन अमाउंट चेंज होंगे, अमाउंट्स चेंज होंगे। क्यों अमाउंट्स चेंज होंगे, क्योंकि एस्टिमेट्स चेंज होते हैं, राइट। वो कैलकुलेशन देखेंगे अभी, कैलकुलेशन, या यू विल गेट सी हियर द कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। सी हियर how are you going to calculate is, first you are going to see existing ESOP, कितने ESOP अवेल होने वाले हैं, कितने ऑप्शंस अवेल होने वाले हैं। अब क्या होता है, हमको एक एस्टिमेट रहता है कि कुछ ये है ना ऑप्शंस है ना लैप्स हुए हैं या कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए हैं। अगर एम्प्लॉयज़ कुछ छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है, उनका एक्सपायर हो जाता है। अगर उनका एक्सपायर हुआ तो तुम्हारे ESOP चेंज होते जाएंगे, इधर चेंज होएगा ESOP, इधर चेंज होएगा, मतलब कितने ऑप्शंस एक्सरसाइज होने वाले हैं, ये एस्टिमेट चेंज होते रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ओके।
तो हम सॉल्व करते वक्त देखेंगे, बट फॉर्मूला जस्ट अंडरस्टैंड करो यहाँ पे। एग्जिस्टिंग ESOP, ओके, जितने ऑप्शन है ये कैसे कैलकुलेट होगा? एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड टू अवेल, कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो लेने वाले हैं ऑप्शन, ये एक एस्टिमेट है कंपनीज के पास होगा, इनटू शेयर्स पर एम्प्लॉय, कितने शेयर्स तुम देने वाले हो, कितने ऑप्शन तुम देने वाले हो। तो क्वेश्चन मोस्टली कैसे बोलते हैं, देखो ऐसे बोलते हैं, राइट, देर आर 400 एम्प्लॉयज़ एंड टू ईच एम्प्लॉय वी आर गिविंग 20 शेयर्स और 20 ऑप्शंस, या तो कितना हुआ 8000 टोटल ऑप्शन हुए, तो 8000 ऑप्शन इधर लोगे। समझ में आया कैसा? सो 8000 ऑप्शंस इनटू वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब मैंने बोला ये क्यों कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को कैलकुलेशन करने के लिए। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस क्या होता है? डिस्काउंट का कैलकुलेशन, ये एक्सपेंस का कैलकुलेशन होता है। सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यू हैव टू मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड देन you have to consider the vesting period. That's the most important thing. Why vesting period? अभी तो बोला था ना, वेस्टिंग पीरियड के बेसिस पे तुम एलोकेशन कर रहे हो। पूरा एलोकेशन किस पे हो रहा है? 3 साल है तो उस पे हो रहा है एलोकेशन। ये पूरा एक्सपेंस है जो ग्रॉस एक्सपेंस, इसको तुम किसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? ऑन द वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड लेना पड़ता है। अब कैसे लेंगे वेस्टिंग पीरियड? अब एक चीज़ बोलता हूँ, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओके, दिस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू previously that market price, we take the market price of grant date, right? So if you are taking the market price of grant date, वो कभी चेंज नहीं होता, मार्केट प्राइस जो ग्रांट डेट पे होगा वही होगा, तो एक्सरसाइज प्राइस जो होगा उसका डिफरेंस होगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। और हमेशा अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया है 60 बोले या 40 बोले, तो हर साल वैल्यू ऑफ ऑप्शन सेम ही रहेगा। कभी भी तुम रिकग्नाइज करो एक्सपेंस, वैल्यू ऑफ ऑप्शन जब भी तुम लोगे इस फॉर्मूला में सेम टू सेम रहेगा, इट विल नेवर चेंज, ओके। देन द वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड चेंज होते रहेगा, चेंज हो सकता है, कभी कभी सेम रहेगा, कभी कभी चेंज हो सकता है, ओके। सी हियर, ये कैसे सॉल्व करने का, हाउ टू सॉल्व द ESOP। सी हियर, अब इधर थे ना, राइट, सो लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड, तो कैसे लेते हो? इधर फ्रैक्शन लेते हो। फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन? अब देखो, अगर तुम फर्स्ट साल में कैलकुलेशन कर रहे हो, सो कितना टाइम गुजर गया? 1 साल गुजर गया, टोटल कितना साल है? 3 years, राइट। सो 1/3, here 2/3, here 3/3, like that you have to take, okay, 1/3 you have to take। lapsed vesting period, कितना गुजर गया और टोटल कितना है, टोटल वेस्टिंग पीरियड you have to take, right? so this is what you have to do, this calculation and minus total expense already recorded। अब पहले साल में तो इधर कुछ भी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन का, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, इसके पहले कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर तो 0 आएगा पहले साल में। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, जो भी एक्सपेंस तुमने इधर रिकॉर्ड किया हुआ है ना, वो इधर लेके माइनस करना है, वो स्ट्रेट लाइनिंग करना है। समझ में आएगा आपको, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब समझ में आएगा। अब थर्ड ईयर में क्या करोगे, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ये 3/3 बन जाएगा, ये तो सेम रहेगा, एग्जिस्टिंग ESOP एस्टिमेट पे चेंज हो सकता है, राइट। ये क्या होगा, टोटल एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन P&L ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, इधर कितना रिकग्नाइज करे थे, इधर कितना रिकग्नाइज करे थे, दोनों ऐड करके यहाँ पे लेके माइनस करना है, इसको स्ट्रेट लाइनिंग बोलते हैं, ओके। जितना पहले रिकॉर्ड करा है वो माइनस करो, जितना पहले रिकॉर्ड करा है वो माइनस करो, ऐसे करके करना पड़ता है, ओके। जो फिर ये पूरा फॉर्मूला करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आप जर्नल एंट्री में लोगे, ओके। कौन सी जर्नल एंट्री में? ये जर्नल एंट्री में। समझ में आया? तो एवरी साल ना, हर साल तुमको वो कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये कैलकुलेशन करके वो लेना पड़ता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, राइट। तो ये समझ में आया, 2 एंट्रीज क्लियर। हर साल फार्मूला से कैलकुलेशन करो, डालो, फिर ये तो सेम अमाउंट रहेंगे हर साल, मतलब इधर 1 लाख आया, 1 लाख आया, इधर भी 1 लाख आएगा, राइट, बिकॉज हियर यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग दिस, राइट। सो एट द एंड ऑफ एवरी 3 years you have to do this, and then what you have to do, and then comes the एक्सरसाइज पीरियड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेस्टिंग पीरियड, ये पूरा होने के बाद रिकग्नाइज करा एक्सपेंस, रिकग्नाइज करा एक्सपेंस, रिकग्नाइज करा एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर करते जाना है, राइट। एक्सरसाइज पीरियड जब आएगा, एक्सरसाइज पीरियड आने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, एक्सरसाइज पीरियड आने के बाद यू हैव टू व्हाट, सी हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द ऑप्शन, या कितने एम्प्लॉयज़ ने परचेज करे शेयर्स, और उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा, राइट। दिस एंट्री यू विल हैव टू पास। व्हाट इज दिस एंट्री? एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। मतलब क्या होगा, हमको पैसा मिलेंगे ना, पैसा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑफकोर्स पैसा मिलेंगे, बिकॉज यू नो एक्सरसाइज प्राइस, द प्राइस विच वी ऑफर, ESOP will not be free, employees will have to pay cash, so they will pay cash to us, so we'll get the cash and that will be based on X price, right? सोचो 8000 ऑप्शंस ये हुए, 8000 ऑप्शंस क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज हुए, 8000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए का मतलब क्या हुआ अभी, 8000 × 100 या 8 लाख, सो 8 लाख पैसा आएगा। समझ में आया? सिंपल, राइट। ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। अब
ये क्या है, जो भी तुम लाइबिलिटी इधर रिकग्नाइज करते हो वो लाइबिलिटी को कंप्लीटली ये करना है, क्या बोलते हैं, वो लाइबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना है, कैंसिल ऑफ करना है। क्यों, पेमेंट कर दिया ना, पेमेंट करने के बाद वो लाइबिलिटी को क्यों बाकी रखना है, उसको कैंसिल ऑफ करना है। जैसे तुम यहाँ पे क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद जब तुम सैलरी पे करते हो तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है व्हाट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट या लाइबिलिटी का अकाउंट जो रिकग्नाइज करा था पहले उसको डेबिट किया, राइट, उसको डेबिट किया, उसके बाद कैश दे दिया, राइट। लेकिन इधर क्या हम कैश दे रहे हैं, इधर हम कैश नहीं दे रहे, इधर हम शेयर्स दे रहे हैं। तो लाइबिलिटी को कैंसिल ऑफ करो, और वो कैसे करोगे, जितनी ऑप्शंस ये हुए हैं, एक्सरसाइज हुए हैं, इनटू द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इनटू ₹50, ओके, वो करोगे। उसके बाद शेयर्स दोगे, शेयर्स दोगे फेस वैल्यू पे, मतलब फेस वैल्यू पे नहीं, शेयर्स दे रहे हो तुम कौन से, मार्केट प्राइस पे, राइट। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ओनली फेस वैल्यू जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, फेस वैल्यू विल ऑलवेज गो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है 150 है ना, 150 है, सोचो ₹10 था वो शेयर का वैल्यू, सो 10 विल गो टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द रिमेनिंग 140 विल गो टू वेयर, रिमेनिंग 140 विल गो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नहीं तो सिर्फ इधर बैलेंसिंग फिगर ले लो, बस खत्म, राइट। समझ में आई एंट्री, पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी कैंसिल ऑफ कर रहे हो, लेकिन पेमेंट तुम कैश नहीं कर रहे हो। जैसे सैलरी में तुम कैश पेमेंट करते हो ना, इधर कैश नहीं पेमेंट हो रहा, इधर क्या हो रहा है, तुम शेयर्स दे रहे हो, वो लोग पैसा दे रहे हैं कंसेशनल प्राइस पे और हम शेयर्स दे रहे हैं उनको। तो शेयर्स दे रहे हो तो क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इंक्रीज होएगा, है क्या नहीं, सिंपल। सो ये एक्सरसाइजिंग की एंट्री है। उसके बाद कुछ क्या होगा, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे रहेंगे जो क्या बोलते हैं, वो अपना राइट है ना एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो लोग वेट करेंगे और टाइम गुजर जाएगा, प्रिस्क्राइब टाइम विल बी गिवन बाय द कंपनी, टाइम गुजर जाएगा और ऑप्शंस लैप्स हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। इफ ऑप्शंस आर लैप्स्ड दैट मीन्स यू कैन नो लॉन्गर, द एम्प्लॉयज़ कैन नो लॉन्गर एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो लोग फिर शेयर्स नहीं खरीद सकते, लैप्स हो जाएंगे। अगर लैप्स होता है तो हमने उनके लिए लाइबिलिटी बना के रखी थी, राइट, कि वो हमारे से शेयर्स लेंगे, तब हम लाइबिलिटी को ये करेंगे, क्या बोलते हैं, कैंसिल ऑफ करेंगे। तो ऑफकोर्स शेयर्स नहीं लिया, फिर भी लाइबिलिटी को हमको कैंसिल ऑफ करना ही है, राइट। सो यू हैव टू कैंसिल ऑफ द लाइबिलिटी, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन बोलेगा कितने लैप्स हुए, या यू विल गेट टू नो दैट इन द क्वेश्चन। सो उसका कैलकुलेशन लेना है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे लोगे, ESOP है ना, ये ESOP हमेशा वैल्यू ऑफ ऑप्शन पे खेलता है क्या नहीं। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट किस पे चलता है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन पे, डिस्काउंट पे चलता है। जो भी डिस्काउंट में होगा वो उस पे चलता है ना, वैल्यू ऑफ ऑप्शन पे, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही होगा इधर भी। जैसे इधर वैल्यू ऑफ ऑप्शन था ESOP आउटस्टैंडिंग, सो ESOP आउटस्टैंडिंग हमेशा वैल्यू ऑफ ऑप्शन पे खेलता है, ओके। सो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्या करोगे आप, जितने ऑप्शन लैप्स हुए हैं, सोचो 500 ऑप्शन लैप्स हो गए, सो 500 इंटू वैल्यू ऑफ ऑप्शन का जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करोगे, ये मिल जाएगा। उसको ट्रांसफर कहाँ करोगे, जनरल रिजर्व में, ओके, राइट। स्टैंडर्ड वो ये बोलता है, गाइडेंस नोट बोलता है यू हैव टू ट्रांसफर इट टू जनरल रिजर्व, फाइन, नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। वेस्टिंग पीरियड, देखो एक चीज़ बोलता हूँ, कभी भी ऑप्शंस लैप्स होते हैं आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड, आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड जो भी ऑप्शन लैप्स होते हैं उसका ट्रांसफर हमेशा जनरल रिजर्व में होता है, ओके, क्लियर। और अगर ऑप्शन लैप्स हुए इसके पहले, वेस्टिंग पीरियड में कुछ ऑप्शन लैप्स हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है, कभी कभी वो हमारे इसमें आएगा, किसमें, कैलकुलेशन में मालूम पड़ेगा, तब आता है तो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में रिवर्स कर देते हैं, ओके। हम देखेंगे while solving the problem, don't worry, we'll see that later. But now here, these are the default journal entries that you have to pass, okay. Recognizing the expenses at the end of every 3 years, not every 3 years, every year, okay. Recognize करना है। उसके बाद जब एक्सरसाइज पीरियड आएगा, कितने शेयर्स परचेज हुए हैं, कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं, you have to see that properly and pass the journal entry, and whatever option that have lapsed you have to take it over here, this entry, या ESOP outstanding account, general reserve। बस ये दिमाग में रखो कि द मेन थिंग इज ESOP ये है ना, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ये किस पे खेलेगा, ये तुम्हारे वैल्यू ऑफ ऑप्शन पे खेलेगा, ESOP आउटस्टैंडिंग ऑल्सो द सेम थिंग, राइट। और कैश और बैंक अकाउंट जब आएगा एक्सरसाइज प्राइस पे, क्योंकि ये प्राइस पे हमने उनको शेयर्स दिए हैं तो ये पेमेंट हमको मिलेगा, राइट। तो कैश और बैंक अकाउंट हमेशा एक्सरसाइज प्राइस पे खेलेगा और इधर हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंसिंग फिगर, क्लियर। तो अभी कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन वो देखेंगे अभी। देखो फर्स्ट तुमको क्या करना है, आइडेंटिफाई द वेस्टिंग पीरियड, राइट। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेस्टिंग पीरियड, राइट। 99% ऑफ द टाइम, नॉट 90%, 99% ऑफ द टाइम इट विल बी गिवन 2 years, 3 years, 4 years लाइक दैट, ओके। डायरेक्टली पता चलेगा कितना ईयर्स है, मालूम पड़ेगा, ओके। ये ईजी है, ये ऐसा आएगा बहुत ईजी है, लेकिन सम टाइम इट विल नॉट बी एक्यूरेट।
जब परफॉर्मेंस कंडीशन होती है, राइट, परफॉर्मेंस कंडीशन मतलब देर विल बी टारगेट्स, राइट, यू विल बी गिवन टारगेट्स टू अचीव, राइट। जब भी ऐसा रहेगा तो क्या होता है, तुम अगर इतना इनकम जनरेट करते हो, अगर इतनी इनकम कंपनी की होती है, अर्निंग होती है, तो वेस्टिंग पीरियड है ना 1 ईयर होता है कभी कभी, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है तो 2 पीरियड ऐसा हो रहता है, 2 ईयर 3 ईयर, ऐसा डिपेंड करता है एस्टिमेट्स पे। तो जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, ओके। बट मोस्टली 99% ऑफ द टाइम इट विल बी गिवन एग्जैक्टली 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स फिक्स्ड, ओके, राइट। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ESOP, कितने ESOP दे रही है कंपनी, कितने ऑफर हो रहे हैं। सो ये है ना हमेशा देखना है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। क्यों एट द एंड ऑफ एवरी ईयर तुम क्या करते हो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हो। तो इधर तुमको एग्जिस्टिंग ESOP तुमको ये लेना पड़ता है, तो हर साल के एंड में तुमको ये देखना पड़ेगा एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू अवेल इनटू शेयर्स पर एम्प्लॉय। मतलब क्वेश्चन बोलेगा 400 एम्प्लॉइज है, राइट, 400 एम्प्लॉइज आर देयर इनटू एक एम्प्लॉय को 20 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सो इनटू 20, सो 8000, लाइक दैट। समझ में आया, राइट। तो ऐसा करना पड़ता है। तो ये हर साल के एंड में तुमको देखना है कितना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ जाते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ जाते हैं। तो जब छोड़ जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ का नंबर कम हो जाएगा, तो एग्जिस्टिंग ESOP चेंज हो जाएगा। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्लियर। दिस विल नॉट चेंज, शेयर्स पर एम्प्लॉय विल नॉट चेंज, एट द बिगिनिंग ओनली इट विल बी डिसाइडेड 20 पर एम्प्लॉय और 1 पर एम्प्लॉय, लाइक दैट, राइट। फिर आता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन का कैलकुलेशन यू ऑलरेडी नो दैट, या वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। 2 method I have told you, sometimes it is directly given, sometimes you have to calculate through intrinsic value. Yeah, first priority is fair value of option, directly given, take it. Yeah, second priority calculated through intrinsic value. Intrinsic value you remember, right? क्या भूल गए, market price per share 150 minus exercise price 100, value of option, that's how you will get it, right? तो वैसा करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा लास्ट, मतलब ये कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट, कैलकुलेट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये कैसे करते हैं, एग्जिस्टिंग ESOP कितने ऑप्शंस एक्सरसाइज होंगे, ये एक एस्टिमेट लगाते हैं हम, ओके। सॉल्व करते वक्त बहुत समझ में आएगा, इधर ओवरव्यू मिल रहा है बस, तो बराबर से सुनो, राइट। देन वैल्यू ऑफ ऑप्शन, दिस विल नेवर चेंज, ऑलवेज कांस्टेंट। और इधर ये वेरिएबल हो सकता है, अगर परफॉर्मेंस कंडीशन रहा, राइट, तो क्या होगा, ये चेंज हो सकता है। पहले ईयर हम ले सकते हैं 1/2, दूसरे ईयर ना मालूम पड़ा वेस्टिंग पीरियड और लंबा हो सकता है, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो ये लंबा चल सकता है, 2/4, 2/3 ऐसा हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। लेकिन अगर फिक्स्ड है, अगर ये वाला केस है, फिक्स दिया हुआ है 3 साल, तो 1/3, 2/3, 3/3, लाइक दैट, ओके। और ये तुमको मालूम है हर साल में कितना माइनस करना पड़ता है। पहले साल में तो कुछ भी नहीं, 0। सेकेंड साल में जो पहले साल में रिकॉर्ड किया है एक्सपेंस, वो माइनस करो। थर्ड साल में, सेकेंड और फर्स्ट साल में कितना रिकॉर्ड करा है, वो माइनस करो। ऐसा करके ये निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं ECE, राइट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। ये फॉर्मूला से निकालना पड़ता है। ये जनरल एंट्री है ना, जनरल एंट्री से होता है ये। फिर पास ECE एंट्री, ECE एंट्री कौन सी, ECE एंट्री ये वाली एंट्री, राइट, ये 2 एंट्रीज है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की, और वो एंट्री पास करना पड़ता है। फिर पास ECE एंट्री एंड ट्रांसफर टू P&L, या ये हर साल के एंड में करना पड़ता है, हर साल के एंड में। फिर जब एक्सरसाइज पीरियड आता है, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कैंसिल। ESOP आउटस्टैंडिंग हमेशा किस पे चलता है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन पे चलता है। बैंक अकाउंट किस पे चलेगा, कैश और बैंक अकाउंट एक्सरसाइज प्राइस पे, जो हमको रिसीव होएगा एक्चुअली। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, फेस वैल्यू, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, सिंपल। तो इधर क्या हुआ, हमने शेयर्स दे दिए, राइट, दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड दीज थिंग्स, राइट। पैसा आ गया, लाइबिलिटी कैंसिल ऑफ हो गई। और कुछ शेयर्स अगर लैप्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस लैप्स होते हैं, तो वो ऑप्शन लैप्स होने पर हमने जो ये करा था, जो लाइबिलिटी रिकग्नाइज करी थी इन दिस एंट्री, इसी एंट्री में, उसको कैंसिल करना है। ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में उसका बैलेंस ट्रांसफर करना है, सिंपल। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, टफ नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टडी मटेरियल से सॉल्व करना फ्रॉम द ICI मटेरियल, एंड यू विल फील इट्स वेरी सिंपल। या टेक्निकल टर्म्स सब याद है ना, ग्रांट डेट, वेस्टिंग मतलब एलिजिबिलिटी, एक्सरसाइज प्राइस, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, 2 मेथड्स। या सो दिस इज इट, राइट। सी द एंट्री वंस अगेन। या एंट्री सिंपल है ना, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट टू ESOP आउटस्टैंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर करो, हर साल के एंडिंग में ये करो। फिर एक्सरसाइज दी ऑप्शन, कुछ लैब्स हुए तो लैब्स की एंट्री पास करो। सो दैट्स ऑल देयर इज, राइट, दैट्स ऑल देयर इज। या सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉब्लम्स, ओके। और ये था हमारा ESOP, राइट। देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज ESPP, ओके। वी विल सी दैट इन द थर्ड वीडियो ऑल्सो, ओके। Okay then, see you in the next video, okay? Let's solve some problems there. Bye.